Hello friends, how are you? Welcome to the Japan Study Center. Today we are going to see the social certification. Social, social certification, that is the most important topic here. And the next point arrive here, that is important. Next point here, types of social certification. That's important here. Types of social certification. Social certification is the base upon a variety of principle. Social certification is a base upon a variety of principle. So we find different type of certification. Different types of certification here. The major types of certification are here. The important. First of all, here caste. Second, class. Third, state, and the slavery. That's important. The four types here are certification here. The major four type: caste, class, state, and survey. That's important. Let's see one by one clarification here. Come on. The first here caste. Caste is the hereditary or endogamous social group in which a person's rank, and it is a company rights and obligation are ascribed on the basis of his birth into a particular group. For example, Brahman, Kshatriyas, Vaishya, and Shudra caste. That's important social certification here. The first here types is a caste. Caste is the most important. There is an endogamous social group which a person ranks here. And a company rights and obligation, that's important. His basis is a birth into be particular group. Example is the most important here. Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudra caste. That's important. The next here, the important class. The class is important. Certification on the basis of the class is dominant in a modern society. That's important. Second types of class here. The class is dominant in a modern society. In this is a person has a position depend to a very greatly extent upon a achievement and his ability to use to advantage the newborn characteristics and wealth that may be possessed. That's important. The class is important because the class is the dominant in a modern society, and there is a great extent upon to the achievement and his ability to the use or advantage the newborn characteristics and wealth that may be possessed. That's important here. The next year and the third, estate. The estate is important. Third, types of social certification. The estate system of medieval Europe provides another system of certification, which give a much emphasis to be birth as well as to the wealth and position. That's important here. There is a estate is important. The state is emphasis to be a birth as well as to be wealth and position, and each state had a state. Each state had a state. And the next year, slavery. Slavery is important. Slavery had economical basis. Slavery had an economical basis. In slavery, every slave had his master to the whom he was subjected. The master as a power over to the slave as a unlimited. That's important here. The slave is important, the economical basis. In slavery, every slave had his master to the whom he was subjected. The master as a power over to the slave was unlimited. That's important here. The next here, characteristics of social certification. That's important. Characteristics of social certification. On the basis of the analysis of the different definition given by the eminent scholars,
Social certification may have the following characteristics here. Let's see the characteristics of social certification here. The first here, social certification is universal. That's the most important characteristics here. Social certification is universal. There is no society on this world which is free from to certification. That's an important point here. There is no society on this world which are free from a certification. That's important. Modern certification differ from certification of primitive society. That's important. The modern certification differ from the certification of primitive societies here. It is a worldwide phenomenon, and according to the Shawkins, and there is a Shawkin, all the permanently organized group are certified. According to here, Shawkin, all the permanently organized groups are certified. That's important first level here. Social certificate is a universal. And the next here, certification is a social. That's important characteristics here. Certification is a social. It is a true. It is a true that biological qualities do not be determined once a superiority and inferiority. That's important. There is a quality do not be determined one are superiorities and inferiorities here. Factor like age, sex, intelligence as well as strength often contribute as the basis on which the status are discrimination. But one's education and property, power, experience and character is a personality, etc. That's important here. Certification social, that's important. There is a one education, property, power, experience, character, and personalities, etc., are found to be a more important than to the biological qualities here. Here, now, certification is a social nature. There is a certification is a social by the nature. The next here, it is a assent. The most important characteristics here, it is a assent. Certification system is a very old. Certification system is very old. It was present even in the small wandering bonds. It was present even in the small boundary bonds. In almost all the ancient civilization, the difference between to rich and poor, humble and powerful existed here. That's important. There is a ancient civilization, there are difference between to the rich and power. During the period of Plato and Catullus, even the emphasis was given to political and social and economical inequalities. That's important here. During the period of Plato and Catullus, even the emphasis was given to the political, social and economical inequalities here. The next characteristics here, it is a diverse form. That's important. It is a diverse form here. That's important. Next point. The form of certification is not a uniform in all the society. That's important. The form of certification is not a uniform in all the society. In the modern world, class, caste, and estate are the general form of certification. That's important. In the modern world, class, caste, and state are generally form of certification. In India, a special types of certification in the form of caste in a found. There is India is a special types of certification in the form of caste in the found. The Asen areas were divided into four bonds. The area was divided into the four bonds. That's important. The Brahmins,
Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. That's important. Arya divided into four varnas here. Brahmans, Kshatriya, Vaishyas and Sudra. The ancient Greek were divided into the free man and slaves. That's important here. The ancient Greek were divided into the free man and slave. And Aryas divided into four bonds here: Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. But ancient Greek divided into two types: free man and slave. And the ancient Romans were divided into the patrician and the plebeians. So very society past, present, and big or small is the characterized by diverse from to the social stratification. That's important point here. The next point, that's the most important social stratification is a consequential. That's important. Social stratification is a consequential here. That's important. Social stratification has two important consequences here. First of all, once here, life chance. There is life chance here. And others, one is a lifestyle. A class system is not only affect the life chance of the individual, but also their lifestyle. There is the most important consequence here. The life chance is the first, and second is here life style. That's important. Their members of class have a similar social chance, but their social chance vary in every society. That's important. The numbers of class have a similar social chances, but the social chances vary in every society. It includes chances of survivals and of the good physical and mental health, opportunity for education, chance of obtaining justice, materials, conflict, separation, and divorce, etc. That's important here. The chance is the most important because there is including a chance of survival and good physical and mental health, an opportunity for the education, chance of obtaining justice, materials, conflict, and separation and divorce, etc. That's important. Is a social chance that is important. And the next, lifestyle denoted a style of life which is the descriptive of a particular social status. There is the descriptives of particular social status. Lifestyle includes such as matters like the residential area in every community and which have gradation of prestige ranking. The gradation of prestige and ranking, mood of housing, mean of discretion, the kind of dress and kind of books, TV show to which one exposes, and so on. Lifestyle may be a believed as a subculture in which one or stratums different from another within the frame work of commonly share over all the culture. That's important lifestyle here. Lifestyle there is generally here included a prestige ranking, mood of housing, means of discretion, the kind of dress, the kind of books, TV show, which is one express on, and so on. There is a lifestyle here. That's important here, including a subculture and all culture here. That's important for the exam view. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक सत्रीकरण। सामाजिक सत्रीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामाजिक सत्रीकरण के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा पॉइंट है सामाजिक सत्रीकरण के प्रकार। देखिए सामाजिक सत्रीकरण का प्रकार जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा एग्जाम व्यू से। तो सामाजिक सत्रीकरण के
अंतर्गत से प्रकार की अगर बात करें तो सामाजिक सशक्तिकरण विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। सामाजिक सशक्तिकरण जो है विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। अंततः हम विभिन्न प्रकार के सशक्तिकरण पाते हैं। समाज में हमें कई प्रकार के सशक्तिकरण देखने को मिल सकता है। सशक्तिकरण के मुख्य प्रकार की बात करें तो जाति, कक्षा, संपदा और गुलामी, यानी ये चार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सशक्तिकरण के प्रमुख प्रकार जो आपके समक्ष है जाति, कक्षा यानी क्लास, संपदा और गुलामी। सशक्तिकरण ये चार ही प्रकार से बने हुए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में एक के बाद एक हम जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे और सारे जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम जाति के बारे में कि जाति जो है हमें क्या बताती है। तो जाति की अगर हम बात करें तो कहते हैं जाति एक वंशागत अंतर्विवाहित समाज समूह है, यानी एक ये वंशानुगत है, यानी वंशों से आधारित है और यह अंतर्विवाहित समाज समूह का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति के रैंक और उसके साथ जुड़े अधिकार और दायित्व उसके किसी विशेष समूह में जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। यानी आप जिस जाति में जन्म लोगे आपका वही चीज़ जो है निर्धारित होती है। यानी देखा जाए तो जाति एक वंशागत है और ये अंतर्विवाहित भी है और इसमें जो रैंक हमें मिलती है वो हमें जन्म के आधार पर मिलता है। आप जिस जाति में जन्म लोगे आपको उसी जाति का जो है रैंक मिलेगा जो आपके जीवन साथ चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र जाति ये एक जाति थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है कि इंसान को जन्म के आधार पर उसको ब्राह्मण की जाति मिलती है, क्षत्रिय की जाति मिलती है, वैश्य, क्षूद्र ये जन्म पे आधारित थी। तो देखा जाए जाति व्यवस्था जो थी वो वंशागत थी और अंतर्विवाहित थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र का जाति का जो है रूप था उस समय। आगे हम क्लास की बात करें, कक्षा की, तो कहते हैं आधुनिक समाज में वर्ग के आधार पर वर्ग सशक्तिकरण के प्रमुख रहे हैं। यानी आधुनिक समाज में हम देखें तो आज ना तो कहते हैं जन्म पे आधारित होती है, न ही जात पात पे होती है। आज जिसको जैसा समाज में रुतबा है उसी प्रकार से उसका जीवन सतर भी है। समाज जो है देखा जाए समाज वर्ग के आधार पर वर्ग सशक्तिकरण प्रमुख रहा है और इसमें किसी व्यक्ति की स्थिति बहुत हद तक उपलब्धि और उसके पास मौजूद जन्मजात विशेषताओं और धन का लाभ उठाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। यानी देखा जाए तो आधुनिक समाज में कहते हैं उसके पास मौजूदा विशेषता जो होती है धन लाभ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके पास कितना धन लाभ है, कितने उसके पास धन है। धन के अंतर्गत वो अमीर गरीब जो है वर्गों में बंटता है। कहते हैं अगर वो क्षुद्र जाति का भी है लेकिन उसके पास धन है तो आज के समाज में वो अपर कास्ट में आएगा। अगर वो ब्राह्मण, कहते हैं उच्च जाति ब्राह्मण का भी है, अगर उसके पास धन दौलत नहीं है तो वो निम्न यानी जो है लोअर कास्ट में आएगा। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज जो है बहुत हद तक उसकी उपलब्धियों पर डिपेंड करता है, उसके पास मौजूदा जन्मजात विशेषताओं और धन के लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो ये आधुनिक समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखी जा सकती है। उसके पश्चात आता है संपदा। देखा जाए तो संपदा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य युगीन यूरोप की संपत्ति प्रणाली जो है सशक्तिकरण की एक और प्रणाली प्रदान करती है जिसमें जन्म के साथ साथ धन और संपत्ति पर भी अधिक जोर दिया जाता है और प्रत्येक संपत्ति का एक राज्य होता था। यानी देखा जाए तो ये स्टेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ई स्टेट यानी संपत्ति भी जो है यहाँ पर सोशल सर्टिफिकेशन को निर्धारित करती है। इसलिए इसको प्रकार के रूप में देखा गया है कि मध्य युगीन यूरोप की संपत्ति प्रणाली सशक्तिकरण की एक और जो है प्रणाली प्रदान करती थी जिसमें जन्म के साथ साथ उसके धन और संपत्ति पर भी अधिक जोर दिया जाता था और इसी से उसके संपत्ति का एक राज्य यानी स्टेट बनता था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो गुलामी जो कि हमारा आखिरी जो है प्रकार है गुलामी का आधार आर्थिक था। गुलामी में प्रत्येक गुलाम का अपना स्वामी होता था जिसके वो अधीन रहता था। दास पर स्वामी का शक्ति असीमित थी। यानी देखा जाए
तो एक समय काल ऐसी थी जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो थे गुलाम रखा करते थे, और गुलाम की स्थिति जो होती थी नीच होती थी, और उसका स्वामी उच्च कोटि की होते थे। और ये हमने कई जगह देखे भी हैं। हमारे देश में भी देखा जाए तो गुलाम शासकों की एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उसमें सभी के सभी जो शासक बेशकली बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुलामी यानी जो है स्लैब जो है से संबंध रखते थे। यानी देखा जाए तो उनको किसी न किसी राजा ने खरीदा था, और खरीदने के बाद जो है उनको प्रशिक्षण देके उन्हें सम्राट का जो है दर्जा दिया गया था। तो हमारे भारत में भी जो है गुलाम के आधार पर आर्थिक था, और गुलाम के प्रत्येक गुलाम अपना जो है स्वामी के अंतर्गत कार्य करता था, अधीन था, और इसका जो है राजा के रूप में भी देखी जाती थी। तो गुलाम का शासक का जो देखा जाए तो भारत में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। और दास प्रथा जो है वो हमेशा से चलती आ रही है। देखिए, दास प्रथा पहले भी थी और आज भी है, सिर्फ इसका जो है रूप बदल गया है, लेकिन कहते हैं आज भी वो चीज़ें मौजूद हमारे समाज में बेखूबी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक सतीकरण के लक्षण। सामाजिक सतीकरण के लक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण के आधार पर सामाजिक सतीकरण की प्रमुख विशेषता हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सतीकरण के लक्षण प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के अंतर्गत हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हमारे समक्ष जो पहली विशेषता आई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और विशेषता ये बताती है कि सामाजिक सतीकरण की सार्वभौमिक है। यानी सामाजिक सतीकरण जो है सार्वभौमिक है। इस संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो सतीकरण से मुक्त हो। हर एक समाज में आपको सतीकरण देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आधुनिक सतीकरण आदिम समाजों के सतीकरण के भिन्न थे, और यह एक विश्वव्यापी घटना है। सोरोकिन के अनुसार सभी स्थायी रूप से संगठित समूह स्वीकृत होते हैं। यानी यहाँ पर सोरोकिन ने साफ शब्दों में इस बात को रखा कि सभी स्थायी का मतलब है जो है परमानेंट रूप से संगठित समूह सत्रीकृत होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो सतीकरण से मुक्त हो। सभी में कोई न कोई रूप में सामाजिक सतीकरण कोई न कोई रूप में विद्यमान अवश्य रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक सतीकरण की ये सार्वभौमिकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे यदि विशेषता की बात करें तो सत्रीकरण सामाजिक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सत्रीकरण सामाजिक है। यह सच है कि जैविक गुण किसी भी श्रेष्ठता और हीनता का निर्धारित नहीं करती है। यानी देखा जाए जो जैविक गुण, आप सोचिएगा कि यहाँ पर जैविक गुण क्या होते हैं। जैविक गुण होते हैं लिंग, उम्र, बुद्धि, ताकत। ये सब हमारे जैविक गुण होते हैं जो हमें कहते हैं जन्मजात प्राप्त होती है। यानी जैविक गुण किसी श्रेष्ठता और हीनता की निर्भरता नहीं होती है। जैविक गुण के कारण हम किसी लड़की को कमज़ोर नहीं कह सकते, या कभी किसी लड़कों को जो है बलवान नहीं कर सकते। जिसमें श्रेष्ठता होती है और जिसकी महानता होती है वो कहते हैं जैविक गुण होने के पश्चात भी अपने आप को अलग दर्शा सकता है समाज में। और ये सच है कि जैविक गुण किसी श्रेष्ठता और हीनता का निर्धारित नहीं करती है। जैसे उम्र, लिंग, बुद्धि और ताकत जैसे कारक अक्सर मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने के आधार के रूप में योगदान करते हैं। ये जो होते हैं सिर्फ एक मूर्त बन सकती है, लेकिन मूर्त में श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन किसी की शिक्षा, संपत्ति, शक्ति, अनुभव, चरित्र, व्यक्तित्व आदि जैविक गुणों से अधिक महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। यानी सत्रीकरण संभवतः सामाजिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम सत्रीकरण की जैविक गुण पर न निर्धारित करके उसकी शिक्षा पे ऊपर अगर हम बल दें, उसके पास संपत्ति आती है, शक्ति आती है, अनुभव होता है, चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है, तो वो व्यक्ति जो है अपनी स्वभावता सामाजिक को दूर करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है समाज में घोषित कर सकता है। और वहाँ पर ना तो कोई उम्र उस समय मुकाबला कर सकती है, ना तो लिंग, ना बुद्धि, ना ताकत, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर।
आय की विशेषता की बात करें तो यह एक प्राचीन है, यह प्राचीन है। सत्रीकरण प्रणाली बहुत पुरानी है, यानी देखा जाए तो सत्रीकरण जो है हमारा काफ़ी पुरानी है। रीजन्स ये है कि सत्रीकरण हमारे समाज में सदैव ही विद्यमान थी कोई ना कोई रूप में, और यह छोटे आश्चर्यजनक बंधनों में भी मौजूद था, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाजी सत्रीकरण जो है मौजूद थी। लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में अमीर गरीब विनियम और शक्तिशाली के बीच अंतर मौजूद सदैव से रहा है। अगर हम अब बात करें प्लेटो और कौटिल्य के काल में भी राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक असमानता पर जोर दिया गया था। तो इसका अर्थ यही हुआ कि सामाजिक सत्रीकरण जो है पुराने समय से है, और यह कि समाज में किसी न किसी रूप में सदैव ही विद्यमान रही है, क्योंकि समाज में सदैव ही ये बात ध्यान दिया जाता है कि समाज में अमीरी गरीबी विनियम शक्ति के बीच हमेशा ही कुछ न कुछ फर्क रहा है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्लेटो और कौटिल्य के काल में भी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक असमानता पर जोर दी गई थी। उसके पश्चात आगे देखें तो यह विविध रूपों में भी विद्यमान रहती है। कहते हैं सभी समाजों में सत्रीकरण का स्वरूप एक सामान्य नहीं होता है, सभी समाजों में सत्रीकरण का स्वरूप एक जैसा नहीं होता है। आधुनिक विश्व में जाति वर्ग संपत्ति संस्कृतिकरण के सामान्य रूप थे, यानी आधुनिक विश्व में हम देखें तो आज वर्ग जाति संपत्ति सत्रीकरण के सामान्य रूप है। भारत में जाति के रूप में एक विशेष प्रकार का सत्रीकरण पाया जाता है। देखा जाए तो प्राचीन आर्य जो है 4 वर्गों में विभाजित किए थे, यानी देखा जाए तो समाज सत्रीकरण को 4 वर्गों में बांटने का श्रेय प्राचीन आर्य को जाता है, और प्राचीन आर्य ने इसको जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभक्त किया था। आपको पता ही होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण थे, और वर्ण देने का श्रेय जो जाता है आर्यों को जाता है। आर्यों ने समाज को जो है इन 4 वर्णों में विभक्त कर दिया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्राचीन यूनानियों को स्वतंत्र लोगों को दासों में विभाजित किया गया था, और जो प्राचीन यूनानी थे उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया था, एक स्वतंत्र लोग के रूप में और एक दासों के रूप में विभाजित किया था। तो कहते हैं जैसे समय काल आता गया वैसे वैसे हमारे समाज में सामाजिक सत्रीकरण जो थी कोई न कोई रूप में मौजूद थी। प्राचीन रोमों को भाग लेने वाले प्लेबिनों में विभाजित किया गया था, और इसलिए प्रत्येक जो है समाज अतीत या वर्तमान बड़ा या छोटा सामाजिक सत्रीकरण के विभिन्न रूपों की विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक समाज अतीत या वर्तमान बड़ा या छोटा सामाजिक सत्रीकरण के विविध रूपों की विशेषता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम बात करें सामाजिक सत्रीकरण के परिणाम, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक सत्रीकरण का परिणाम, सामाजिक सत्रीकरण के 2 महत्वपूर्ण परिणाम हैं। एक है जीवन की संभावनाएं, सामाजिक सत्रीकरण के 2 महत्वपूर्ण परिणाम है, एक है जीवन की संभावनाएं और दूसरा है जीवन शैली, यानी पहला लाइफ चांस दूसरा लाइफ स्टाइल। यानी जीवन की संभावनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और जीवन शैली तो और भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज सामाजिक सत्रीकरण जो पाया जाता है हमारे समाज में वो कहीं ना कहीं जीवन शैली पर आधारित होती है। एक वर्ग प्रणाली न केवल व्यक्तियों की जीवन संभावनाओं की बल्कि उनकी जीवन शैली को भी काफ़ी प्रभावित करती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। एक वर्ग के सदस्य की सामाजिक संभावनाएं सामान्य होती है, यानी एक वर्ग है तो उनमें जितने भी सदस्य हैं उनकी सामाजिक संभावनाएं यानी चांस सामान्य बने रहते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज में सामाजिक संभावनाएं भिन्न भिन्न होती है। देखिए एक सदस्य की सामाजिक संभावनाएं सामान्य रहेगी, लेकिन समाज में प्रत्येक समाज में सामाजिक संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होगी। इसमें जीवित रहने और अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की संभावना बनी रहती है। इवन देखें तो शिक्षा के अवसर भी रहेगा, न्याय प्राप्त करने की संभावना भी रहेगा, वैवाहिक संघर्ष भी रहेंगे, अलगवाद भी देखा जाएगा और तलाक आदि शामिल भी होंगे। तो ये संभावनाएं हैं कि एक समाज में बहुत सी विभिन्नताएं भी हो सकती है, और इसमें महत्वपूर्ण बात होती है शारीर मानसिक स्वास्थ्य की संभावनाएं,
शिक्षा के अवसर, न्याय प्राप्त करने की संभावना, वैवाहिक संघर्ष, अलगवाद की भावना, तलाक आदि शामिल होते हैं। इवन हम अगर देखें जीवन शैली को, तो जीवन शैली की एक शैली यह भी दर्शाती है कि जो विशेष समाज स्थिति की विशिष्ट होती है। और जीवन शैली में ऐसे मामले शामिल होते हैं जैसे प्रत्येक समुदाय में आवासीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा, रैंकिंग, आवास के तरीके, मनोरंजन के साधन, पोशाक के प्रकार, किताबों के प्रकार, टीवी शो जिसमें व्यक्तियों को देखा जाता है आदि के क्रम होते हैं। जीवन शैली के एक उप संस्कृति के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी जीवन शैली को हम उप संस्कृति के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें आमतौर पर साझा समग्र संस्कृति के ढांचे के भीतर एक परत दूसरे परत से भिन्न होती है, यानी एक चीज़ जो होता है दूसरे से काफ़ी भिन्न नज़र आता है। तो ये जीवन शैली है। जीवन शैली में मुख्य बातें रैंकिंग, आवास के तरीके, मनोरंजन के साधन, पोशाक के प्रकार, किताब के प्रकार, टीवी शो जिसमें व्यक्ति को देखा जाता है आदि क्रम सम्मिलित होते हैं। तो ये सब जीवन शैली है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहें। यहाँ पर हम समाज सशक्तिकरण के अंतर्गत सारे बातों को एनालाइज करेंगे, हर एक बात को समझेंगे, जानेंगे, जो आपको हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। तो आपको इसके लिए बने रहना पड़ेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं सब्सक्राइब की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, शेयर की बात कर रहा हूँ। कारण ये होता है कि ये वीडियो दूसरे बच्चे तक भी पहुँचना चाहिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। क्योंकि अपना सिर्फ लाभ देखना ये उचित नहीं है, सबका लाभ अपना लाभ, यही विश्वास हर एक तिरपान सेंटर के साथ जुड़े बच्चों से तिरपान सेंटर रखता है। इसलिए जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा, चाहते हो कि और भी भविष्य में आपको वीडियो इसी प्रकार प्राप्त होता रहे बिना तकलीफ के, तो जरना सी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो चैनल आपके मोबाइल में सेव रहेगा, हर एक बात का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार कर चुका है, जो आपको हर एक वीडियो, हर एक चीज़ यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।